Good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel present with another video of our this question solving pattern. Uh, as you know, we have solved all the JEE mains morning 2025 first shift papers. Then we solved all the NEET papers starting from 2020 to 2024, including re-exams and Manipur examination. Now we are going to start 2024 JEE shift. So today we are going to discuss the 27th January morning shift paper. So this uh, playlist will include all the papers of JEE 2024. So let us start with the paper trick and concept. First question is, two nucleotides are joined together by a linkage known as phosphodiester, glycosidic, disulfide and peptide. If you remember, अगर छोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद है, ज्यादा डीप याद नहीं है. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फॉर ग्लूकोज मींस शुगर्स. दिस इज फॉर सल्फाइड कंपाउंड्स. दिस इज फॉर प्रोटीन्स. दैट मींस ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ए है. अब ए मुझे क्या है कि मान लो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज मुझे याद नहीं है कि ये लिंकेज जो है वो दिखने में कैसी है, बट स्टिल इन तीनों का तो पता है ना कि दे आर नॉट प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये सिर्फ शुगर्स के लिए होती है, ये प्रोटीन्स के लिए होती है, ये सल्फाइड्स के लिए होती है, जहां पे हम लोग सोल्स बनाते हैं. सो दैट मींस ए इज माय फाइनल आंसर. तो ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, ज्यादातर ट्रिक. So let us check the answer. We have got this answer as right answer. Okay, so moving to the next question. Second question, highest enol content will be shown by. These are the compound. Now highest enol content, that means ketoenol tautomerism, that means alpha hydrogens. So in A and B the alpha hydrogens are same, 2 2 2 6. Here 2 2 and 2 6. Okay, moving to the next compound. Let me erase it. Third 2 2 4 4 8. Okay, then okay, see, D is not there. Now out of C and B, B will become aromatic when we make it ethanol content. So B is my right answer. How it will go? It will proceed like this: OH 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 bond bond bond. Now this is better. This will show more enol content due to its aromaticity, aromatic nature. So moving to the next question, question number 3. Element not showing variable oxidation state कौन सा होता है? फ्लोरीन. ओनली -1. ये -1 to +7 तीनों के तीनों शो करते हैं. सो दैट मींस फ्लोरीन इज माय राइट आंसर विदाउट एनी thinking anything else. Just we have got this answer as right answer. Moving to the next question. Which of the following is the strongest Bronsted base? SIP SIR याद होगा सब बच्चों को. Now amines are strong bases. Why? Because they can donate pair of electrons. Okay, so that means A is not, B is not, कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. C एरोमेटिक है, दैट मींस D ही मेरा आंसर है. यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट. C हमारा एरोमेटिक हो गया. B में SIR SIP लगेगा A और B में. सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन याद होगा आपको, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह जो एसिडिटी में लगाती है, इसमें SIR SIP बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस. Which of the following element electronic configuration would be associated with the highest magnetic moment? अब करना कुछ नहीं है, ये इसके बनाओ 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे 3.75 आएगा. यहाँ है 3D 8. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट आएगा. अब 3D 6 का क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 4.75, मतलब डी मेरा आंसर है. बताओ, इतना आसान क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो कौन नहीं करना चाहेगा. सो डी शुड बी माय राइट आंसर. यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following has highest acidic hydrogen? Acidity is directly proportional to -I, inversely proportional to +I. So here अगर आप ध्यान से देखो तो आपको -I वाला ग्रुप मिलेगा. -I ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोनाइल ग्रुप. ओके, तो यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है और ये हाइड्रोजन एसिडिक मिलेगा. हाईली एसिडिक कंटेंट हाइड्रोजन ढूंढना है. ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है,
नो डाउट ये सारे के सारे एसिडिक हैं, बट वी हैव टू फाइंड मोस्ट एसिडिक। तो अगर आप ऑप्शन डी में देखो, इस हाइड्रोजन के ऊपर यहां से भी माइनस आई लग रहा है, यहां से भी माइनस आई लग रहा है, दैट मीन्स ये वाला बाकी सब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोस्ट एसिडिक बन जाएगा। व्हाई? बिकॉज इसको दो साइड से माइनस आई का सामना करना पड़ रहा है। बाकी सब में देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी दो माइनस आई नहीं है इनके आसपास, सिर्फ डी में है, सी में नहीं है। यहाँ पे देखो दोनों कार्बोनिल कितने दूर दूर हैं, यहाँ पे देखो कार्बोनिल नेबरिंग है, इनके बीच में कोई है ही नहीं हाइड्रोजन जो कि एसिडिक बने। So definitely D is my right answer. Yes, we have got answer right. Moving to the next question. A solution of two miscible liquids showing negative deviation. Negative deviation का मतलब क्या हो गया कि boiling point should be high. Boiling point should be high का मतलब ये डिक्रीज वाला खत्म हो गया। देन इन्होंने बात किया वेपर प्रेशर की। अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब लो वेपर प्रेशर, इंक्रीज वेपर प्रेशर खत्म हो गया, मतलब डी मेरा आंसर है। समझाया बच्चों? हाउ आई हैव सॉल्व्ड? डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो कॉन्सेप्ट का यूज करके। सो डी शुड बी माय राइट आंसर। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आई गेस। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ओके, the correct order of complex n according to the spin on the magnetic moment value. Okay, now here oxygen state of iron is +3, fluorine is weak field ligand, means all the 5 electrons will be unpaired. अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जब Fe+2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, Fe+3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर मैं R की बात करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, +2 बनेगा। +2 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये आ गया 5.75 4.75। वेनेडियम SCTiV means 23 means 4s2 3d3। now 2 electrons are removed, that means it will have 3.75। now what we have to do, correct order of the complex according to their spin on the magnetic, that means the order will be P then R then Q। आंसर आपके सामने है, कहां है, P R Q, C है बच्चों, देखना ही नहीं है कुछ, एरो का ध्यान रखना किस साइड मुंह खुला है उसको। so definitely C is my right answer, let us check। yes, we have got this answer right। moving to the next question, ये वही explanation में शायद वही होगा, हाँ सब वही गिवन है। ट्रिक बताई थी मैंने कि आपको कैसे सॉल्व करना है। 9, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। पोलर निकालना है आपको, ये पढ़ा हुआ है पोलर, मेरे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, यू कैन चेक इट फ्रॉम द क्लास नोट्स। डायरेक्टली वी हैव गॉट द आंसर, है ना। पोलर मॉलिक्यूल क्या आएगा, ऑल बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, ऑल सब्सिडियरी एटम सेम। तो जो पोलर है वो नॉन पोलर हो जाता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the 4f and 5f series of elements are placed separately in the periodic table to preserve the principle of classification। एकदम ट्रू, एकदम सही है। जब आप लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पढ़ते हो तो वहां पे सबसे पहले यही लिखा जाता है, दिस इज द एनसीईआरटी लाइन। नेक्स्ट, S block elements can be found in pure nature, false, because they are very reactive, that's why they cannot be found in pure form। so that means statement 1 is true, 2 is false। कहां है ऐसा ऑप्शन, 1 is true and 2 is false, 1 is true 2 is false, option number C। yes, we have got this answer as right answer। moving to the next question, statement, okay, statement question है, para nitrophenol is more acidic देन मेटा नाइट्रो एंड ऑर्थो नाइट्रो। एकदम सही है, बिकॉज ये जो पैरा ग्रुप है ये कुछ ऐसा दिखेगा, आपको पता ही है। आपको अब मैं क्या बताऊंगा इसमें यार, यू नो एवरीथिंग, बस आपको ट्रिक्स अप्लाई करने नहीं आ रहे। तो मेटा -I देता है, यहाँ पे -M और -I दोनों लग रहे हैं, ऑर्थो के ऊपर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है तो एसिडिटी कम हो जाती है, मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लूकास रिएजेंट, फॉल्स है भाई, नहीं आएगी क्योंकि टर्शरी देता है इमीडिएट टर्बिडिटी। दैट मींस स्टेटमेंट 1 is true 2 is false, 1 is true 2 is false। so definitely option number A should be my right answer। yes, we have got this answer as right answer। moving to the next question, S, okay, this is the same thing।
असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अब देखो बच्चों एसिडिटी बतानी है आपको, दिस गिव्स -I एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, मतलब बी मैक्सिमम हो गया। देन MeO प्लस M देता है, फिनोल है, नाइट्रो है, ओके, E मैक्सिमम, देन B, E के बाद आ गया B, B के बाद अगर मैं D लगा दूं क्योंकि फिनोल है, फिनोल एसिडिक होता है, ये +I वाला है आपका, ये भी +I वाला है, प्लस M देता है। इसके बाद अगर मैं C लगा दूं और उसके बाद क्या लगा दूं A, मतलब EBDCA, +I और -I के हिसाब से हमने इसको सेटअप किया है, EBDCA। लेट अस चेक इफ इट इज द ऑप्शन इज देयर, EB, I deleted everything, EBDCA I guess, EBDCA, EBDCA तो है ही नहीं कहीं पे, EBC, ओके, एरो दूसरी साइड है, EBDAC, EBDCA, D is my right answer, definitely D is my right answer, क्योंकि +I और -I लगाना था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना, चेक कर लेते हैं आंसर। Yes, we have got this answer as right answer. So moving to the next question, question number 13. Assertion है melting point of boron is unusually high in group 13, बहुत एकदम सही है, true है, बहुत हाई होता है। Solid boron has crystalline lattice, ये भी true है, और इसको explain भी कर रहा है क्योंकि crystalline structures have high boiling points, strong bonds, that is the reason. So A and B are correct and it is a correct explanation. देखो कहाँ है आंसर, let us check the options. Both A and B are correct but not the correct explanation. A and B are correct and R is correct explanation. That means B should be my right answer and it is actually my right answer. So moving to the next question, question number 14 I guess. Cyclohexane is a type of organic compound. Benzenoid तो नहीं है, aromatic भी नहीं है, acyclic भी नहीं है, alicyclic है I guess. Yes, D, it is my right answer. एलिसाइक्लिक है भाई, सिंगल साइकिल, सिंगल ही टाइप के एटम्स हैं और साइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट, सॉरी, येलो कंपाउंड ऑफ लेड क्रोमेट गेट डिसॉल्व्ड ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट NaOH सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट ऑफ लेड फॉर्म्ड इज, ओके। अब इसका थोड़ा सा रिएक्शन मेमोरी बेस्ड है बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीडियो पॉज कीजिएगा एंड देन यू कैन राइट दिस रिएक्शन। नाउ लेड क्रोमेट इज PbCrO4, इसमें जब हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड तो येलो कलर मेरे पास कहां से आएगा, PbOH4 एंड 2 नेगेटिव, साथ में यहां बनेगा Na2CrO4, सो PbOH4, लेट अस चेक इफ इट इज गिवन देयर और नॉट। ओके, ऐसा कुछ है ही नहीं, इट इज डाइआयनिक विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, डाइआयोनिक, टेट्राआयनिक नहीं है, सॉरी टेट्राआयनिक नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, डाइआयनिक विद 6, डाइआयनिक विद 4, आप खुद ही बताओ क्या आंसर है। सो डी इज माय राइट आंसर। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है एनसीईआरटी के ऊपर, आपके जो आंसर हैं वो ऑटोमेटिकली, यस राइट आंसर, वी हैव गॉट दिस आंसर राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आई गेस। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, यस होता है बेसिक क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है वो और H2CO3 देता है। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स अपॉन Ka एंड Kb, यस। जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना वीक एसिड वीक बेस का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, मेन स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, यस वी हैव our right answer. Moving to the next question, question number 17. IUPAC name of the following compound P. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि आपको बस एडिशन प्रोडक्ट खेलना है। यहाँ पे कितना आएगा, 5 5 10 plus 1 11 3 1 1 5 1 3 3 7 1 1 3 5, मतलब C और A तो मेरा खत्म हो गया आंसर। I am left with B and D. Now alphabetically E comes, D comes. Here 1 1 dimethyl, मतलब D मेरा आंसर नहीं है। So definitely जो यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा आप लोग खुद ही देख लीजिए, जो मेरा यहाँ पे आंसर बन रहा है वो C बन रहा है। सॉरी C नहीं है, एक मिनट यार इरेज करने दो।
कचरा हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, बी बन रहा है, so B is my right answer. Yes, we have got this answer as right. तो आप ये प्रोडक्ट एडिशन वाला खेल सकते हो, हालांकि ये रूल आयुपैक ने निकाल दिया है, बट स्टिल आप इसको यूज कर सकते हो। NaCl reacts with H2SO4 and K2Cr2O7 to give reddish fumes B. Okay. Which reacts with NaOH to give yellow solution C. B and C are respectively. देखो C जो है वो आपका क्रोमियम कंपाउंड है, डेफिनेटली जो आपका C है वो क्रोमियम का कंपाउंड है। B हमें ढूंढना पड़ेगा। अब क्रोमियम कंपाउंड 3 में है, तो मतलब इसका रिएक्शन ही लिखना पड़ेगा। ये जरा स्मार्ट बोर्ड पे लिखते हैं। देखिए ये होता क्या है, ये होता है NaCl को डाला था सल्फ्यूरिक एसिड में शायद, और उसके बाद उसमें डाला गया था K2Cr2O7। चेक कर लेते हैं एक बार। NaCl reacts with H2, हाँ उसने दिया B। अब जो हमें यहाँ पे B मिलेगा ना बच्चों, जो यहां से हमें B मिल रहा है वो होता है CrO2Cl2 प्लस KHSO4 प्लस NaHSO4। तो क्रोमियम कंपाउंड जो होता है वो देता है हमें रेडिश कलर। तो मतलब आपका जो A है वो CrO2Cl2 है। अब इसी में जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो ये जो प्रोडक्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4। अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, इससे शायद 1-2 क्वेश्चन पीछे ही लिखा था, क्वेश्चन नंबर 15 था शायद, सेम रिएक्शन हमने किया था। तो इसका कलर आपका होता है येलो। तो मतलब CrO2Cl2 A है, Na2CrO4 B है। CrO2Cl2 and Na2CrO4, I guess A should be my right answer. A should be my right answer. Let us check. Yes, we have got this answer as right answer. तो बच्चों आप मेरे वीडियो को पॉज करके इसको रिएक्शन को लिख सकते हैं। The correct statement regarding nucleophilic substitution reaction in a chiral alkyl halide. Retention occurs in SN1. नहीं होती है, गलत। रेसिमाइजेशन इन SN1 ट्रू है एंड रिटेंशन इन SN2 ये भी गलत है। रेसिमाइजेशन इन SN1 ये भी गलत है, मतलब डी मेरा आंसर है। डी क्या है? रेसिमाइजेशन इन SN1 एंड इन्वर्जन इन SN2। डेफिनेटली डी इज माय राइट आंसर। लेट अस चेक दिस आंसर। Yes, D is our correct answer. Moving to the next question. Question number, I guess, 1920. The electronic configuration of neodymium is, बच्चों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप इसको याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये होता है 4f2 6s2, ऑप्शन नंबर ए। सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन के बाद आपको याद रखनी है, बस इनकी सीरीज में याद कर लो या फिर आप इसको लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको सही लगे हम कर सकते हैं। तो देखो हमने 18 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इतना इजी पेपर था ये, फर्स्ट शिफ्ट इतनी इजी आई थी। नॉर्मली इजी होती है फर्स्ट शिफ्ट। द मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? NF इंटू n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो मेरा कितना बनेगा? n फैक्टर होता है इसका 4 इंटू 5600 डिवाइडेड बाय 22400 इज इक्वल टू n फैक्टर 1 है गिवन मास अपॉन 108। तो ये 0 कैंसिल, तो n इज इक्वल टू गिवन मास इज इक्वल टू 56 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 22 एंड 108। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूं। तो ये सब कुछ करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया है वो ओके 56 इंटू 4 कितना होता है? मुझे लग रहा है कि ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। 5 6 24 2 40 20, हाँ ये कट गया। 56 4 21 मतलब 108। सो गिवन मास इज 108। लेट अस चेक दिस आंसर। ऑक्सीजन O2 4, ओके डन, सही है, सब सही है। लेट अस चेक दिस आंसर, जस्ट चेक दिस आंसर। 108, यस आवर आंसर इज करेक्ट आंसर। तो ये एक्सप्लेनेशन बड़ी लंबी चौड़ी लग रही है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, बस n फैक्टर आपको लगाना था और आपका काम हो जाता था। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द गिवन रिएक्शन। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत आसान होता है। आपको करना क्या है,
रेट इज इक्वल टू k इंटू एच आई रेस्ट टू पावर n। अब इसको आप निकालोगे कैसे? आप इसको ले लो और इसको ले लो, तो 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.05 रेस्ट टू पावर n। ओके, अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 7.5 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/4 रेस्ट टू पावर n। Now 1/2 raised to power 2 is equal to 1/2 raised to power n. That means n is equal to 2. So 2 मेरा आंसर आएगा। Let us check this answer, अगर सही हो, नहीं तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। एक और ट्रिक है, उससे सॉल्व करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। We have solved this answer. इन्होंने भी इनफैक्ट इसी फॉर्मूले का यूज किया है। Moving to the next question. कहाँ गया? ओके, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा है, 23 है शायद। मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। ओके, मीथेन की कंबशन करी हमने, मतलब CH4 की कंबशन की, तो हमें क्या मिला? CO2 कितना मिला? 22 ग्राम। 22 ग्राम का मतलब कितना हो गया? हाफ मोल। अब इसकी कंप्लीट कंबशन होने का मतलब क्या हो गया कि इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16। अब 1 मोल CH4 1 मोल CO2 दे रहे हैं, तो 0.5 कितना देगा? 0.5 इंटू 16 कितना हो गया? 8। मतलब बिना पेन उठाए मैं इसका आंसर 8 लिख सकता हूं। बाकी चेक कर लेते हैं, 8 ही होगा डेफिनेटली। हाफ मोल स्टोइकियोमेट्री लग रही है, सीधा सीधा। यस, वी हैव गॉट राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ 3 moles of a gas at 300 Kelvin expands isothermally, isothermally मतलब डेल्टा U is equal to 0। मेरी हैबिट है, मैं सब कुछ साथ साथ लिख लेता हूं। फ्रॉम 30 डेसीमीटर टू 45 डेसीमीटर मतलब 15 इंटू 10⁻³ डिफरेंस आएगा। अगेंस्ट ए कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर 80 kPa मतलब 80 इंटू ये -3 10⁻³ देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज। मुझे डाउट था कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जहां पे हमें ये सब कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, क्योंकि आइसोथर्मल है। सो डेल्टा U 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू -W। दैट मीन्स माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V। सो दैट मीन्स ये बन जाएगा minus of minus P external delta V. So what is the P external? 80 into 10⁻³ into what is delta V? Delta V is 15 into 10⁻³ ये कैंसल, 15 8 सा 120 1200। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था यार, इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते थे इसको। So let us check 1200 if it is our answer। होगा, यही होगा। Yes, we have got this answer as right answer। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका थर्मोडायनामिक्स का। 3-methyl-hex-2-ene on reaction with HBr in presence of peroxide, okay, forms an addition product A. Number of possible stereoisomers for A is, पहले तो स्ट्रक्चर बना लो। 3-methyl-hex-2-ene 1 2 3 4 5 6 hex-2-ene HBr का मतलब हो गया कि एंटी मार्कोनिकॉव में मेरे पास ब्रोमीन, अच्छा मैं इसको नीचे लिखता हूं, यहां पे लिख देते हैं। एंटी मार्कोनिकॉव में मेरे पास जो ब्रोमीन आएगा वो यहां ऐड होगा, 1 2 3 4 5 6। सो 3 मिथाइल भी है भाई, 1 2 3, यस, यहां लगा देता हूं ब्रोमीन। नाउ अब क्या करना है? स्टीरियोआइसोमर निकालने हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये वाला कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, स्टीरियो निकालने हैं। ये वाला कार्बन भी ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, क्यों? इस साइड 2 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, इधर 1 कार्बन की चेन और इधर हाइड्रोजन। यहां एक साइड ब्रोमीन, 1 कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर पूरा अलग। दैट मीन्स आपके पास 2 कायरल कार्बन आ गए, तो D प्लस L 2⁻² कितना बना? 4। तो डेफिनेटली 4 इज माई आंसर। लेट अस चेक दिस आंसर। 4 should be my answer. Yes, we have got 4 as our right answer. Moving to the next question, question number 26 है I guess.
ओके, among the organic compound the total number of aromatic compound, aromatic compound ढूंढने हैं, B तो है, C भी है, D भी है, और देख लेते हैं। ओके, बी सी डी तीन ही है, ए बी सी डी, तो मतलब तीन है इसके बी सी डी, ए नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, और ये एंटी एरोमेटिक है, 4n इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, यहां पे ये एरोमेटिक है बच्चों, ये हिस्सा एरोमेटिक है, ये पाई बॉन्ड, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा, ये इधर, तो ये इसके साथ भी रेजोनेंस खेलेगा, मतलब ये भी है, ये भी है। इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, एरोमेटिक है, मतलब तीन आएंगे मेरे आंसर जो है, बी सी एंड डी। बाकी चेक कर लेते हैं, ए तो है ही नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है ना ए में, सो 3 शुड बी, यस, बी सी एंड डी आर एरोमेटिक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हो गए जो कि मेटा डायरेक्टिंग मतलब -m देते हैं। दिस इज +m नहीं है, दिस इज हेयर, साइनाइड इज देयर, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास इसलिए नहीं है, COR इज देयर, ये नहीं है, ये है, तो टोटल मेरे पास आ गए 1 2 3 4। अगर आप मेटा डायरेक्टिंग +m -m वाली सीरीज भी याद करते तब भी आपका आंसर मिल जाता। सो लेट अस चेक इफ 4 इज आवर आंसर और नॉट। यस, इट इज आवर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, question number 28 I guess. So number of electrons present in all the completely filled subshells having n is equal to 4 and s is equal to +half। बहुत आसान है। अब n जो है वहां पे क्या होता है आपका, n is equal to 4 है, 4s 4p 4d 4f, that means total electrons मेरे पास इनके बन जाएंगे 32, क्योंकि यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ 6 होंगे, यहाँ 10 होंगे और यहाँ 14 होंगे। अब मुझे निकालने हैं सिर्फ +हाफ वाले, मतलब 13 - 16 इज इक्वल टू 16। ये -16 कौन से किया मैंने, -हाफ वाले, और इसने बोला कि ये कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब 4s में, और यहाँ पे n 4 गिवन है, n 1 to 4 नहीं है, नहीं तो हम सबके कैलकुलेट करते। तो 16 शुड बी माई राइट आंसर। लेट अस चेक, yes, our answer is correct answer. Moving to the next question, sum of bond order of CO and NO plus। now बच्चों bond order CO कार्बोनाइल में होता है 3, NO plus में भी 3 होता है, 3 + 3 6। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको इंटीजर टाइप में नहीं मिल सकता। ये 2024 में इजी था बच्चों को, देखो सही आंसर आया, याद करो और काम खत्म करो। फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढनी है। यहाँ पे आ जाएगी 3 2 6, 3 2 6, 6 - 2 +4, 2 2 4 +4 +4, 4 2 8 - 2 +6, 7 2 14, 14 - 2 12 +6, मतलब 1 2 और 1 3, राइट। यहाँ +6 है, +6 है, +6 ढूंढनी है द नंबर ऑफ कंपाउंड विद +4 ऑक्सीजन स्टेट, दैट मींस 3 शुड बी माय राइट आंसर। लेट अस चेक, yes, it is our right answer. So बच्चों, this is all about the 27th January morning shift our JEE mains। अब इसमें एक चीज मैंने नोटिस की है कि इसमें 10 क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी थे, थोड़ा ये भी एनालाइज करेंगे। 10 ऑप्शन के आंसर डी मिले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 18 को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। दैट मीन्स 20 में से 18 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे और यहां पे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो इजीली एनीवन वुड हैव सॉल्व्ड 23 क्वेश्चन। 23 into 4 is 92, तो 92 मार्क्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 99.5 परसेंटाइल कोई भी बच्चा यहां ले सकता था आसानी से, इतना इजी पेपर था। हमारा पेपर टाइम देखो 28 मिनट्स में सॉल्व हो गया पूरा का पूरा। सो ये होते हैं ट्रिक्स और कंसेप्ट बच्चों जब आप अप्लाई करते हो, है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बस आप ट्रिक्स और ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखो, ट्रिक्स को अप्लाई करते जाओ, आपका मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। 2025 का सेकंड अटेम्प्ट निकलेगा आपका मेंस, है ना। सो विल बी प्रेजेंट विद अनदर वीडियो 27 जनवरी इवनिंग शिफ्ट फॉर 2024 JEE मेंस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं
वो मेरी 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट की वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं। सो जरूरी नहीं होता कि आपको स्पेशल वीडियो लगा के देखनी है। आप खाना खा रहे हो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मोबाइल फोन में लगा के अपने हेडफोन्स कानों में लगा लीजिए, आपको ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट का मिक्सचर देखने को मिलेगा। बस ये है कि आपके दो ऑप्शन स्टार्टिंग में एलिमिनेट होते हैं, आपको कैसे एलिमिनेट करने हैं, बस वही सिखा रहा हूँ बच्चों। सबको आती है केमिस्ट्री, सब अच्छे टीचर्स हैं, सब अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, बस ट्रिक्स कैसे अप्लाई करने हैं, इट इज ओनली फॉर दैट पर्पज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।